today's our topic is redundo singula singulis. This is a Latin term which means प्रतिदान का सिद्धांत. हम इसको कंटिन्यू करेंगे. मैंने पीपीटी शेयर किया है, विजिबल है सभी को? यस सर. यस सर. पीपीटी विजिबल है? यस सर. जी सर. यस सर. Okay, okay. The rule of redundo singula singulis is a Latin term which means when a list of words has a modifying phrase at the end, the phrase refers only to the last word, such that firemen, policemen and doctors in a hospital. Here in a hospital only applies to doctors and not to firemen or police. Redundo singula singulis is a Latin term that means by referring each to each, प्रत्येक को प्रत्येक, referring each phrase or expression to its corresponding object. उनसे संबंधित जो भी ऑब्जेक्ट है उसी को एक्सप्रेस करेगा. The redundo singular singulis principles concern the use of word distributive where a complex sentence has more than one subject and more than one object. It may be the right construction to render each to each by reading the provisions distributive and applying each object to its appropriate subject. A similar principle applies to words and their subject and to other parts of speech. Redundo singula singulis इस सिद्धांत का अर्थ है कि शब्दों का वितरण इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए. इसका अर्थ लगभग वही है जैसे कि शब्द क्रमवार, रेस्पेक्टिवली अथवा जैसा लागू हो, एज एप्लीकेबल. क्रमवार जो शब्द हैं, जैसे का कोई लास्ट वर्ड जो है और उसके आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो उससे सिमिलर जो भी वर्ड हैं वो उसी के काउंटिंग में किया जाएगा. प्रतिदान का सिद्धांत, इस सिद्धांत का अर्थ है कि धारा के एक भाग के विभिन्न शब्द, इसी धारा के एक भाग के विभिन्न शब्द दूसरे भाग के शब्दों से उसी क्रम से संबंधित होंगे. किसी लिखित व्यवस्था में कोई वाक्य खंड इस प्रकार पढ़ा जाता है कि एक वाक्य में की गई दो व्यवस्थाएं किसी दूसरे वाक्य के दो प्रयोजनों में से किसी एक पर लागू हो तथा उसी प्रकार दूसरी व्याख्या दूसरे प्रयोजन के प्रति लागू हो सके. कॉमनवेल्थ बनाम बार्बर के मामले में कहा गया कि इस सिद्धांत के अनुसार एक वाक्य के विभिन्न अंश, विभिन्न वाक्यों का अर्थ संदर्भ क्रम के अन्य अंश या वाक्यों से लगाया जाना चाहिए जो कि एक दूसरे से संबंधित है. व्याकरणमूलक व्याख्या से अन्यथा बात प्रतीत होती हो. अगर ग्रामेटिकली इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल रहा है तो भी अन्यथा बात प्रतीत होती है, तो भी उसका अर्थ जो है उसी शब्द क्रमवार, रेस्पेक्ट और एज एप्लीकेबल जैसा एप्लीकेबल होना चाहिए. Redundo singula singulis, a typical application of this principle is where a testator says, I devise and bequeath all my real and personal property to B. The term devise is appropriate only to real property. The term bequeath is appropriate only to personal property. Accordingly, by the application of this principle, Redundo singula singulis, the testamentary disposition is read as if it were worded, I devise all my real property and bequeath all my personal property to. अ नाम का एक व्यक्ति अपनी सभी वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति को, दो तरह की प्रॉपर्टीज की, रियल प्रॉपर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, वह नाम के व्यक्ति को उत्तरदान और अर्पण करता है. डिवाइस एंड बिक्यूथ. तो इस सिद्धांत के अनुसार उत्तरदान शब्द का संबंध वास्तविक संपत्ति के, डिवाइस इज appropriate only to real property, वास्तविक संपत्ति से, and the term bequeath is appropriate only to personal property. और अर्पण शब्द का संबंध उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से संलग्न होगा. This rule has been applied in the case of Koteshwar Vittal Kamath versus K. Rangappa Balinga, AIR 1969, in the construction of the provision to Article 304 of the Constitution, which reads, provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. It was held that the word introduced applies to bill and applies to amendment. First time कोटेश्वर विट्ठल कामत वर्सेस के रंगप्पा बलिंगा के मामले के अंदर इस रूल को अप्लाई किया गया था. In the construction of the proviso to Article 304 of the Constitution of India, which reads, provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state
without the previous sanction of the president. It was held that the word introduced apply to bill and move apply to amendment. इंट्रोड्यूस का मतलब तो बिल से लिया गया था और मूव अप्लाई टू अमेंडमेंट. कोई संशोधन करना हो तो उसके लिए मूव वर्ड का यूज किया जाएगा. Redundant singular singulis is one of the secondary rules. Redundant singular singulis is a Latin term that means referring to each, referring each phrase or expression. Yeah. Referring each phrase or expression to its corresponding object in simple words. This means that when a list of words has a modifying phrase at the end, the phrase refers only to the last. अगर बहुत सारे words हैं तो modifying phrase at the end है वहाँ पर the phrase refers only to the last. It is a rule of construction used usually in distributing property where there are general word or descriptions following a record of particular things. Such general words are to be constructed distributively, and if the general words can apply to some things and not to others, the general words are to be applied to those things to which they will and not to those to which they will not apply. This is to say, each phrase, word or expression is to be referred to its suitable object. This is most important, that it is to say each phrase, word or expression is to be referred to its suitable object. When a list of words has modifying phrase at the end, the phrases refers only to the last word, such that firemen, policemen and doctors in a hospital. Here in a hospital only applies to doctors and not to firemen or policemen. The redundant singular singular principles concern the use of word distributively. Where a complex sentence has more than one subject, it may be right constructions to render each to each by reading the provision distributive and applying each objective to its appropriate subject. Where a complex sentence, अभी हमने जो example देखा था complex sentence का, fireman, policeman and doctor in a hospital. तो यहाँ पर if a complex sentence has more than one subject, it may be right construction to render each to each by reading the provision distributive and applying each object to its appropriate subject. अब यहाँ पे in a hospital के अंदर अगर appropriate subject के बारे में कहा जाए तो it applies to doctor only. A similar principle applies to the verbs and its subject and to the part of speech. The best example of redundant singular singular is quoted from Wharton's Law Lexicon. If anyone shall draw or lord any sword or gun, if anyone shall draw or lord any sword or gun, the word draw is applied to sword only and the word lord to gun only. अगर यहाँ पर कहा जाता है if anyone shall draw or lord any sword or gun, तो अब sword जो है तलवार है उसको तो lord नहीं किया जा सकता, उसे draw ही किया जा सकता है, and lord की जहाँ पर बात की जा रही है तो वहाँ पर gun को refer किया जाएगा. The draw is applied to sword only and the word lord to gun only. The former verb to former noun and latter to latter, because it is impossible to lord a sword or to draw a gun, and so of other applications of different set of words to one another. A typical application of this principle is where a testator says, हमने पहले भी ये example दिया था, I devise and bequeath all my real and personal property to be. The term devise is appropriate only to personal law. Accordingly, by the application of the principle redundant singular singulis, the testamentary disposition is read as if were words I devise all my property and bequeath all personal property of thee. So this is the best example Wharton's Law Lexicon में दिया. If anyone shall draw or lord any sword or gun, the word draw is applied to sword only and the word lord to gun only. Case law. This rule was applied in the case of Scottish Vittal Kamath versus K. Rangappa Balinga in the construction of the provision of Article 304 of the Constitution, which reads, provided that no bill or amendment for the purpose of clause B. अब यहाँ पर bill और amendment दोनों की बात की गई है. Shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of. सर थोड़ा धीरे पढ़ा, समझ में नहीं आ रहा है. It held that the word introduced apply to amendment.
अब सर। यहाँ पर इस तरह की चीजें हैं। बेसिकली धीरेन्द्र ये है कि अभी आपको हमारे पास टेंटेटिव शेड्यूल जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें मई में सिलेबस कंप्लीट करना है। दैट्स व्हाई यू हैव टू रन फास्ट। अब आपको करना पड़ेगा। पर सर रन तो करना पड़ेगा, समझ में नहीं आएगा तो सर। अब मुझे एक और चीज है, सिलेबस हो भी जाएगा तो उसका पीपीटी सर सिलेबस तो हो भी जाएगा पर कुछ समझ में नहीं आएगा तो मतलब क्या उस सिलेबस का, ये कहना है मेरा, और कुछ दिक्कत नहीं है सर। ओके चलिए नेक्स्ट हम लोग सिलेबस तो अपन खरगोश चाल से पूरा कर देंगे पर सर नहीं आएगा। जी सर। सर सिलेबस नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो अगर क्लियर हो जाएगा ना तो वो भी तो चलेगा कम से कम। चलिए तो कोटेश विट्ठल कामत वर्सेस के रंगप्पा बलिंगा का जो मैटर है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 304 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच रीड, दो तरह के वर्ड यूज किए गए, एक तो बिल और एक अमेंडमेंट के लिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें, provided that no bill or amendment for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president, राष्ट्रपति के सैंक्शन के बिना उसको नहीं लाया जाएगा। अब यहाँ पर दो तरह के वर्ड यूज किए गए थे, एक तो बिल और एक अमेंडमेंट। बिल के बारे में यहाँ पर ये बताया गया है, the word introduce apply to bill, इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी बिल को, एंड मूव अप्लाई टू अमेंडमेंट। अब अमेंडमेंट जो वर्ड यूज किया गया है वो, ये दोनों वर्ड जो हैं इनके अलग अलग मीनिंग्स यहाँ पर इस तरह से बता रखे हैं। सेकंड केस लो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड एंड अदर्स, 2006 का ये मैटर है। The said principle says that a particular phrase or subject is to be connected with or read with another provisions or another qualifying statement for getting a legal result. Justice G.P. Singh, in his celebrated work Interpretation of Statute, has given best example of the principle of redundant singular singulis. He says that one should not draw or fire a sword or gun in the public. According to author, the word sword is to be read with the word draw, while the word gun is to be read with the word fire. Because a sword can never be fired and a gun can never be drawn. When the legislature in its wisdom has observed that the legislature itself has made a distinction between contribution and disclosure of contribution, then contribution cannot be read to mean a disclosure. यहाँ पर जो हमने पहले देखा था पर्टिकुलर इसी बॉर्टन्स लॉ लेक्सिकन्स के अंदर जिस तरह से इसको काट किया गया था, उसी को यहाँ पर जस्टिस G.P. सिंह ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड अदर्स के अंदर उन्होंने इसी को फिर से काट किया है। उसी एग्जांपल को स्वॉर्ड और गन का जो एग्जांपल है कि एक को ड्रॉ किया जाएगा और एक को लॉर्ड किया जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने उसी वर्ड को फायर गन के लिए उन्होंने फायर वर्ड यूज किया, न कि यहाँ पे लॉर्ड वर्ड यूज किया। तो ये इस तरह की जो चीजें होंगी सेम ईच टू ईच, प्रत्येक को प्रत्येक, जो जिसके ऊपर लागू होगा, जो जिसके ऊपर जिस तरह से लागू होगा उसको उसी फ्रेम में यहाँ पर लिखा जाएगा। नाउ नेक्स्ट, P. Chandramouli and others versus Union of India 1980, Criminal Law General, page number 1241. The rule redundant singular singulis is to be invoked. P. Chandramouli and others versus Union of India 1980, Criminal Law General. थोड़ा धीरे धीरे करना सर, ज्यादा स्पीड में समझ में नहीं आएगा। ओके। Page number 1241. The rule redundant singular singulis is to be invoked while interpreting a sections or a statute when different words of the sections or statute have reference to the different situation or person. The problem may almost entirely be eliminated if short sentence with a single subject and single objects are used. अब ये जो रूल है इसके बारे में यहाँ पर पी चंद्रामौली का जो केस है
उसमें जस्टिस ने यहाँ पर क्रिमिनल और जनरल्स के अंदर पेज नंबर 1241 द रूल रिडुंडा सिंगुलर सिंगुलिस इज टू बी इन्वोक्ड while interpreting a sections or a statute when different words of the section or statute have reference to different situation or persons. The problem may almost entirely be eliminated if short sentences with a single subject and single objects are used. Rajendra Kumar Bhuta versus Maharashtra Housing and Area Development Authority and others 2020 का ये केस लो है. The High Court interpreted the expression no bill or amendment shall be introduced or moved. अब यहाँ पर भी वही वर्ड्स यूज किए गए जो पहले वाले केस के अंदर किए गए थे. नो बिल और अमेंडमेंट. अब बिल का मतलब अलग निकाला जाएगा और अमेंडमेंट, एक तो है बिल पेश किया जाता है और एक संशोधन पेश किया जाता है. शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव. इंट्रोड्यूस किया जाएगा किसी बिल को और मूव किया जाएगा अमेंडमेंट को. ये दो वर्ड जो हैं, अब इसका मतलब ही यहाँ पर प्रतिदान का जो सिद्धांत है, जो जिसके लिए उचित हो उस शब्द को वहां पर यूज किया जाएगा. द हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड द एक्सप्रेशन नो बिल और अमेंडमेंट शैल बी इंट्रोड्यूस और मूव in the proviso as requiring that the bill should neither be introduced or moved without the prior sanction of the president. The court rejected the contention. यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो था इसका कंटेंशन रिजेक्ट किया. Put forward before it that what the proviso really stipulate is that no bill shall be introduced or amendment moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. That argument was advanced on the basis of the maxim redunda singula singulis, which according to Black's interpretation of law means where a sentence in a statute contains several antecedents and several consequences. बहुत सारे जहां पर परिणाम निकल रहे हैं, बहुत सारे जहां पर निर्वचन निकल रहे हैं. Where a sentence is a statute contains several antecedents and several consequences, they are to be read distributively. तो उसको डिस्ट्रीब्यूटिवली पढ़ा जाना चाहिए. जो शब्द जिसके साथ उचित प्रतीत होता है उसको उसके साथ ही पढ़ा जाना चाहिए. Each phrase or expression is to be referred to its appropriate object. Each phrase, जो भी शब्दावली, जो भी वाक्य दिए गए हैं, is to be referred to its appropriate object. तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो उसी के लिए होना चाहिए, न कि आप किसी और के लिए. अगर हॉस्पिटल वर्ड अगर इन ए हॉस्पिटल यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब होगा डॉक्टर्स के लिए. अगर इन ए पुलिस स्टेशन का यूज किया गया है तो वहां पर होगा पुलिसमैन से. और किसी फायर स्टेशन के लिए अगर किया गया तो फायरमैन के लिए. तो जो वर्ड, जो फ्रेज, जो एक्सप्रेशन जिस सेंटेंस के साथ आ रहा है तो उसका अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट होना चाहिए. अगर 2-3 वर्ड वहां पर अगर साथ में हैं तो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट के साथ ही उसका यूज किया जाना चाहिए. अदरवाइज ये जो प्रिंसिपल है हमारा रेडुंडा सिंगुलर सिंगुलिस, प्रतिदान का सिद्धांत और प्रतिधारण का सिद्धांत, यानी कि जो भी कंटेंशन है, जो भी फ्रेज है, जो वर्ड है, जो एक्सप्रेशन यूज किए गए हैं, उसका जो अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूटिव उसके साथ ही किया जाना चाहिए. नेक्स्ट, रेडुंडा सिंगुलर सिंगुलिस, व्हेन ए लिस्ट ऑफ वर्ड हैज ए मॉडिफाइंग फ्रेज एट द एंड. When a list of words, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया गया, has a modifying phrase at the end, the phrase refers only to the last word. जो हमने पहले देखा था, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, such that firemen, policemen and doctors in a hospital. Here in a hospital only applies to doctors and not to firemen or policemen. The redunda singular singulis principles concerns the use of word distributively where a complex sentence has more than one subject. Where a complex sentence, कोई अगर जटिल वाक्य वहां पर दे रखा है, has a more than one subject, उसमें बहुत सारे विषय वस्तु दे रखी है, and more than one object, और बहुत सारे उसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं. It may be the right construction to render each to each. It may be the right construction, तो उनका कंस्ट्रक्शन किस तरह किया जाना चाहिए? टू रेंडर ईच टू ईच, जो शब्द जिसके साथ उचित प्रतीत होता है उसका उसके साथ ही प्रयोग होना चाहिए. बाय रीडिंग द प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूटिवली एंड अप्लाइंग ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट. तो जो भी ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके विषय वस्तु के साथ, जो उसकी मिलती जुलती विषय वस्तु है उसके साथ, जो हमने पहले देखा था फायरमैन, पुलिसमैन एंड डॉक्टर्स. यहाँ पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया. इन ए हॉस्पिटल,
हियर इन ए हॉस्पिटल ओनली अप्लाइज टू डॉक्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर्स के लिए ही यूज किया जाएगा. देन a similar principles applies to verbs and their subject and to other parts of speech. A typical application of this principle is where a testator says, अभी इसमें जब भी हम लोग टेक्स्ट बुक के थ्रू जाएंगे इंटरप्रिटेशन की, चाहे किसी भी ऑथर की आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए, तो उन्होंने 2-3 एग्जांपल्स यहाँ पर बार बार दे रखे हैं. भट्टाचार्य सर की बुक के अंदर भी यही एग्जांपल आपको मिलेगा टेस्टेटर्स का, कि अगर कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं का, अपनी संपत्ति का दान देना चाह रहा है, आई डिवाइज एंड बिक्यूट ऑल माई रियल एंड पर्सनल प्रॉपर्टी टू बी. ए जो है वो बी को अपनी वास्तविक और स्वयं की संपत्ति देना चाह रहा है. द टर्म डिवाइज इज अप्रोप्रिएट ओनली टू रियल प्रॉपर्टी. द टर्म बिक्यूट इज अप्रोप्रिएट only to personal property according to by the application of this principle redunda singula singulis. The testamentary dispositions is read as if it were worded, I devise all my real property and bequeath all my personal property to be. ये 2 एग्जांपल्स हैं, वो पूरा इसके अंदर दे रखे हैं. केस लो भी इसके अंदर 2-3 केस लो हैं, उनका जो इंटरप्रिटेशन इसमें कर रखा है पर्टिकुलर वर्ड्स को लेकर, वही इंपॉर्टेंट है. The rule has been applied in the case of Kotashwar Vittal Kamath versus K. Rangappa Balinga, 1969 का जो most important case है इसका, in the construction of the proviso to Article 304 of the Constitution, Indian Constitution का Article 304, which reads, जो किस तरह से शब्द उसमें यूज किए गए हैं, provided that no bill or amendment, no bill किसी बिल के बारे में और amendment किसी संशोधन के बारे में, for the purpose of clause B shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous section of the president. It was held that the word introduced apply to bill and moved apply to amendments. तो इस तरह से यहाँ पर एक बार हम लोग इसका वापस से रिवीजन कर लेते हैं. प्रतिदान का सिद्धांत जो है रिडुंडा सिंगुला सिंगुलिस का, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बता रखा है, इट इज ए लैटिन टर्म्स दैट मीन्स बाय रेफरिंग ईच टू ईच, प्रत्येक को प्रत्येक, जो शब्द जिसके साथ उचित है वहीं पर उसका प्रयोग किया जाएगा. इफ देयर आर मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, तो अप्रोप्रिएट उसका जो सब्जेक्ट होगा वो उसी के साथ उसका प्रयोग किया जाएगा. रेफरिंग ईच फ्रेज और एक्सप्रेशन टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स. ईच फ्रेज और एक्सप्रेशन, जो भी संबोधन किया गया है, जो भी वाक्यों का या शब्दों का प्रयोग किया गया है, टू इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स, उसका ऑब्जेक्ट्स जो है उसके साथ वो मिलता हुआ होना चाहिए. अदरवाइज यहाँ पर उस जब न्यायपालिका, जब न्यायाधीश किसी स्टेट्यूट का, किसी एक्ट का जब इंटरप्रिटेशन करेंगे, अगर वहां पर लिस्ट ऑफ वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं, तो वहां पर जो लास्ट वर्ड है उसका रेफर किया गया है, उसी के कंटेक्स्ट में उस पर्टिकुलर जो भी सेंटेंस होगा उसका इंटरप्रिटेशन किया जाएगा. रेडुंडा सिंगुला सिंगुलिस प्रिंसिपल्स कंसर्न द यूज ऑफ वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव. शब्दों का जो चयन है वो डिस्ट्रीब्यूटिवली होना चाहिए, उनका वितरण है वो बराबर एक तरह से इस तरह का होना चाहिए कि उससे कोई भी निरर्थकता वाक्य के अंदर या फिर उसका जब इंटरप्रिटेशन किया जाए, उसका निर्वचन किया जाए, तो उससे कोई एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर वहां पर. वेयर ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज मोर देन वन सब्जेक्ट. अगर कोई कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, बिल्कुल जटिल, जब आप कोई एक्ट पढ़ेंगे, कोई इंस्टीट्यूट पढ़ेंगे, तो कई बार क्या होता है कि अभी वाले शब्दों में तो अगर हम देखें तो वहां पर बहुत ही सॉफ्ट वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं ताकि आपको कोई ज्यादा वहां पर कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है. बट पुराने जो एक्ट वगैरह हम देखेंगे तो वहां पर इस तरह के शब्दों का चयन किया गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वहां पर यूज किए गए हैं. तो उनका जब इंटरप्रिटेशन करना होगा, हैज मोर देन वन सब्जेक्ट एंड मोर देन वन ऑब्जेक्ट, वहां पर अगर एक से ज्यादा विषय हैं और एक से ज्यादा उद्देश्य उसके ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं वहां पर, इट मे बी द राइट कंस्ट्रक्शन टू रेंडर ईच टू ईच. तो वहां पर जो जिसके साथ उचित प्रतीत होता है उसका उसी तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए. अब it may be the right construction to render each to each by reading the provision.
distributive and applying each object to its appropriate subject. So as similar principles apply to verbs and their subjects and to other part of speech. जो भी speech वगैरह जो भी दे रखे हैं वहां पर, तो वो उसी के साथ उनका चयन करना चाहिए. पुनः हिंदी में एक बार देखते हैं कि रेडुंडा सिंगुला सिंगुलिस जो प्रतिपादन का सिद्धांत है, प्रतिदान का सिद्धांत है, इसका अर्थ है शब्दों का वितरण. इस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए कि इसका अर्थ लगभग वही है जैसे कि शब्द क्रमवार रेस्पेक्टिवली अथवा जैसा लागू हो एज एप्लीकेबल. इन द हॉस्पिटल तो वहां पर डॉक्टर के लिए एप्लीकेबल होगा. रेस्पेक्टिवली अगर वहां पर फायरमैन, पुलिसमैन और इस तरह के वर्ड दे रखे हैं तो वहां पर जो उस जिसको एप्लीकेबल होगा उस फॉर्मेट में उसी के साथ उन शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए. उनका निर्वचन उसी तरह से न्यायपालिका को या न्यायाधीश को करना चाहिए. प्रतिदान का सिद्धांत का अर्थ धारा के एक भाग के विभिन्न शब्द, जैसे कोई सेक्शन दे रखा है उसके विभिन्न शब्द दूसरे भाग के शब्दों से उसी क्रम में संबंधित होंगे. किसी लिखित व्यवस्था में कोई वाक्य खंड इस प्रकार पढ़ा जाता है कि एक वाक्य में दी गई दो व्यवस्थाएं किसी दूसरे वाक्य के दो प्रयोजनों में से किसी एक पर लागू हो तथा उसी प्रकार दूसरी व्याख्या दूसरे प्रयोजन के प्रति लागू हो सके. उनका इंटरप्रिटेशन इस तरह से किया जाना चाहिए, उनका यूज इस तरह से किया जाना चाहिए कि एक वाक्य खंड की दो व्यवस्थाएं दूसरे वाक्य के प्रयोजनों में एक पर लागू हो और दूसरी व्याख्या दूसरे प्रयोजन पर. दो सेंटेंस जो दे रखे हैं, जैसे हमने स्वॉर्ड वाला और गन वाला जो एग्जांपल लिया था वहां पर, तो स्वॉर्ड तलवार है उसको ड्रॉ किया जा सकता है, उसका रेखांकन चित्रांकन किया जा सकता है. परंतु जब गन का उसके साथ में लॉर्ड वर्ड यूज दे रखा है तो उसको यानी कि कोई भी बंदूक है उसके अंदर गोली भरी जा सकती और तलवार का चित्रण किया जाता. तो दो शब्द जो चित्रण और भरा जाना अगर वहां पर दे रखा है और दोनों को साथ में उन दो वाक्यों को अगर साथ में रखा है तो उनको इस तरह से इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए कि जो व्यवस्था जिसके प्रति लागू की जा सके उसको उसके हिसाब से निर्वचन किया जा सके. तलवार को भरा नहीं जा सकता, उसको लॉर्ड नहीं किया जा सकता, तो वहां पर अगर ड्रॉ वर्ड यूज किया गया है तो स्वॉर्ड को ड्रॉ किया जा सकता है. कॉमनवेल्थ बनाम बार्बर का जो एक मैटर था उसमें कहा गया था कि इस सिद्धांत के अनुसार एक वाक्य के विभिन्न अंश जो डिफरेंट उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, विभिन्न वाक्य का अर्थ संदर्भ क्रम के अन्य अंशों या वाक्यों से लगाया जाना चाहिए जो कि एक दूसरे से संबंधित, जो उससे कोरिलेटिव है, जो जिससे रेस्पेक्टिवली है, जो एप्लीकेबल वहां पर हो सकता है, लागू हो सकता है, उन्हीं शब्दों से संबंधित होना चाहिए, चाहे व्याकरण मूलक व्याख्या से अन्यथा बात प्रतीत होती हो. अगर कई बार क्या होता है कि अगर हम उसी कंटेक्स्ट में अगर उसको कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो हो सकता है कि भिन्न भिन्न अर्थ वहां पर प्रतीत हो, परंतु हमें वहां पर एज एप्लीकेबल, जैसा कि वहां पर एप्लीकेबल हो सकता है उसको उसी फॉर्म में पढ़ा जाना चाहिए, उसका निर्वचन किया जाना चाहिए. यहाँ पर दो केस तो बड़े फेमस हैं, कोटेश्वर विठल कामत का वर्सेस के रंगप्पा बलिंगा का है. कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोविजो टू आर्टिकल 304 के बारे में बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 304 है, इट विच रीड्स प्रोवाइडेड दैट नो बिल और अमेंडमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज बी shall be introduced or moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. राष्ट्रपति की पूर्वानुज्ञा के बिना कोई भी बिल और संशोधन जो हैं उनको इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट नहीं किया जाएगा. तो यहाँ पर दो वर्ड यूज किए गए, दैट नो बिल और अमेंडमेंट. अब बीच में एक वर्ड यूज किया गया और अथवा. जब इनका निर्वचन किया जाएगा न्यायपालिका के द्वारा तो इस तरह से किया जाएगा कि बिल जो शब्द है उसको तो क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कोई भी बिल होता है उसको पेश किया जाता है और संशोधन उसको चलाया जाता है, मूव किया जाता है. इट वाज दैट द वर्ड यू इंट्रोड्यूस्ड अप्लाइज टू बिल एंड मूव्ड अप्लाइज टू अमेंडमेंट. जो वर्ड इंट्रोड्यूस है वो बिल के लिए किया जाएगा और मूव किया जाएगा किसी भी संशोधन को लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की पूर्वाज्ञा के बिना. इसी तरह से एक और उदाहरण हमने यहाँ पर देखा था कि अ नाम का एक व्यक्ति अपनी सभी वास्तविक और व्यक्तिगत संपत्ति, दो तरह की प्रॉपर्टीज के बारे में बता रखा है, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी. वास्तविक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति को ब नाम के व्यक्ति को उत्तरदान और अर्पण करता है. तो इस सिद्धांत के अनुसार उत्तरदान शब्द जो है डिवाइस इट्स अप्रोप्रिएट ओनली टू रियल प्रॉपर्टी
उसको वास्तविक संपत्ति से जोड़ा जाना चाहिए। एंड बिक्विथ, जो अर्पण शब्द का संबंध है वो व्यक्तिगत संपत्ति से, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से होना चाहिए। अगेन यहाँ पर उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से भी कर सकते हैं कि वेयर अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन सब्जेक्ट, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज मोर देन वन सब्जेक्ट और उसके कई विषय हैं वहां पर, इट मे बी राइट कंस्ट्रक्शन टू रेंडर ईच टू ईच, जो प्रत्येक का प्रत्येक जो वर्ड हमने यूज किया गया है जो जहां पर अप्लाई हो सके, बाय रीडिंग द प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूटिवली एंड अप्लाइंग ईच ऑब्जेक्ट टू इट्स एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, उसका जो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है, जो उसका उचित विषय वस्तु है, उसी के साथ उसको अप्लाई किया जाना चाहिए। उनका वितरण उन शब्दों का इस तरह से किया जाना चाहिए क्रमवार कि जो जिसके साथ उचित हो, एप्रोप्रिएट हो, उसका उसी विषय वस्तु के साथ चयन किया जाना चाहिए। A similar principles applied to the verbs, क्रियाओं के साथ भी ये होता है, and its subject, उनके विषय के साथ भी, and to other part of speech, जो भी संबोधन के जो भी स्पीच हैं वहां पर। The best example of redundant singular singulis is quoted from Wharton's law lexicon, उसमें ये एग्जाम्पल दिया गया था जो हमने आगे का एक केस लो है उसके अंदर भी पढ़ा था। If anyone shall draw or lord any sword or gun, if anyone shall draw, anyone shall draw, यहाँ पर shall draw लिखा हुआ है और lord, दो वर्ड यूज किए गए, shall draw और lord। तो एक तो भरा जाना और एक चित्रांकन किया जाना, किसका, एनी स्वॉर्ड और गन। तो अब अगर इनका इंटरप्रिटेशन न्यायपालिका के द्वारा करना है, द वर्ड ड्रॉ इज अप्लाइड टू स्वॉर्ड ओनली, तो यहाँ पर जो चित्रांकन या किया जाना जो है वो तलवार का हो सकता है ओनली, एंड द वर्ड लॉर्ड टू गन ओनली, अब भरा जाना तो बंदूक को ही भरा जाएगा गोलियों से। द फॉर्मर वर्ब टू फॉर्मर नाउन एंड लेटर टू लेटर, पहले वाले को पहले वाले के साथ और बाद वाले को बाद के साथ, वहां पर भी विद एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, उसका जो एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट है उसी के साथ होना चाहिए। ए टिपिकल एप्लीकेशन टू दिस प्रिंसिपल इज वेयर ए टेस्टेटर सेज, अब वही एग्जांपल जो हमने पहले देखा था वो वहां यहाँ पर रिपीट किया गया है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वर्सेस अडानी एक्सपोर्ट लिमिटेड एंड अदर्स, 2006 का जो केस है, यहाँ पर जस्टिस जीपी सिंह, उन्होंने जो भी हमने एक एग्जांपल देखा था उसी को यहाँ पर उन्होंने कोट किया है वहां पर पुनः। He said that one should not draw or fire a sword or a gun in the public. According to the author, the word sword to be read with the word draw, while the word gun is to be read with the word fire. Because a sword can never be fired and a gun can never be drawn. Where the legislature in its wisdom has observed that the legislature itself has made a distinction between contribution and disclosure of contribution, then contribution cannot be read to mean a disclosure. P. Chandramouli and others versus Union of India 1980 Criminal Law General, page number 1241. The rule redunda singula singulis is to be invoked while interpreting a sections or a statute. When different words or the sections or statute have reference to different situation or person, the problem may almost entirely be eliminated if short sentence with a single subject and single object are used. The rule redunda singulis is to be invoked by interpreting a section or statute. जब किसी धारा किसी सेक्शन का, किसी धारा का और किसी कानून का, किसी स्टैट्यूट का जब हम निर्वचन कर रहे हैं और वहां पर when different word of the section or statute have reference to different situation or person, वहां पर जो अलग अलग शब्द हैं, डिफरेंट वर्ड हैं ऑफ द सेक्शंस और स्टैट्यूट, किसी धारा के या फिर किसी कानून के, हैव रेफरेंस टू डिफरेंट सिचुएशन और पर्सन, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में अनेक अलग अलग लोगों के ऊपर लागू हो रहे हैं। द प्रॉब्लम में ऑलमोस्ट एंटायरली बी एलिमिनेटेड इफ शॉर्ट सेंटेंसेस विद ए सिंगल सब्जेक्ट एंड सिंगल ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड। तो वहां पर सिंगल सब्जेक्ट सिंगल ऑब्जेक्ट को यूज किया जाना चाहिए बाय एज एप्लीकेबल, जिस तरह से उनका शब्दों का क्रमवार और जहां पर जिस तरह से उचित प्रतीत होता है उस ऑब्जेक्ट का उस सब्जेक्ट के साथ उन शब्दों का उस तरह से चयन किया जाना चाहिए, उनका निर्वचन किया जाना चाहिए न्यायपालिका के द्वारा। सेम जो हमने पहले एग्जांपल पढ़ा था वो राजेंद्र कुमार भुट्टा वर्सेस महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटीज एंड अदर्स, 2020 का जो
मैटर है, यहाँ पर भी उसी तरह से उन वर्ड को इंटरप्रेट किया गया. द हाई कोर्ट इंटरप्रेटेड द एक्सप्रेशन नो बिल और अमेंडमेंट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव in the proviso as required that the bill should neither be introduced nor moved without the prior sanction of the president. The court rejected the contention put forward before it that what the proviso really stipulate is that no bill shall be introduced or amendment moved in the legislature of a state without the previous sanction of the president. That argument was advanced on the basis of the maxim redunda singula singulis, which according to Black's interpretation of laws means where a sentence in a statute contains several incidents and several consequences, जहां पर बहुत सारे परिणाम निकल रहे हैं, they are to be read distributively. तो उनको एक वितरण वाली जो व्यवस्था है, एक बिल्कुल जो डिस्ट्रीब्यूटिव होना चाहिए, कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? such that each phrase or expression is to be referred to its appropriate object. such that each phrase or expression is to be referred. तो वहां पर जो भी वाक्य हैं, जो भी एक्सप्रेशन है, is to be referred to its appropriate object. तो उनका उनके विषय वस्तु के साथ जो भी उनका ऑब्जेक्ट अप्रोप्रिएट है, उचित विषय वस्तु के साथ ही उनका संबोधन होना चाहिए, उनका निर्वचन उसी तरह से होना चाहिए. जैसे यहाँ पर बिल का इंट्रोड्यूस्ड के साथ किया गया है और अमेंडमेंट को मूव के साथ किया गया है. जबकि अगर हम सेंटेंस वाइज अगर देखें तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा है कि नो बिल और अमेंडमेंट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड. अब सेंटेंस तो एक ही, नो बिल और अमेंडमेंट शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड, परंतु जब उसका न्यायपालिका के द्वारा इंटरप्रिटेशन किया जाएगा तो वहां पर उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से दे आर टू बी रीड डिस्ट्रीब्यूटिवली. ईच फ्रेज और एक्सप्रेशन इज टू बी रेफर्ड टू इज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट. अब एप्रोप्रिएट की अगर हम बात करें तो नो बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और अमेंडमेंट मूव्ड, अमेंडमेंट मूव्ड और बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड. तो इस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन किया जाना चाहिए. ये प्रतिदान का सिद्धांत हमारा यूनिट 3 जो है उसका एक टॉपिक यहाँ पर प्रतिदान का सिद्धांत हमने आज कंप्लीट किया. नेक्स्ट क्लास में हम साचर्य ज्ञावर्ते जो प्रिंसिपल है हमारा, उसको हम लोग देखेंगे. कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम्स रहती हैं तो आप लोग भी थोड़ा सा उसको एक्सेप्ट करिए, क्योंकि वी आर नॉट, हम लोग इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि एकदम हर चीज को. कई बार प्रॉब्लम होती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कई बार थोड़ा सा नॉइस भी रहता है. अब आप लोगों के लिए स्पेशली मैंने वापस फिर वो हेडफोन यूज किया कि मैंने कहा कि वो नॉइस वगैरह नहीं आना चाहिए. That's why सर एक्सेप्ट करिए, तब तो हम देखो 1 बजे तक 4-5 जने क्लास देख रहे हैं. एक्सेप्ट नहीं करी होती तो हम क्लास में ज्वाइन थोड़ी होते. ठीक है. तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक चीज और यहाँ पर बताई थी कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां पर हमने कुछ नोट्स वगैरह अपलोड किए हैं. तो वहां पर आप लोग अपने रेस्पेक्टिवली आपका जो भी सब्जेक्ट है और जिस सब्जेक्ट के आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, तो वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं. जी सर. ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. आप अकॉर्डिंगली अपने नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर सकते हैं और आगे की जो भी गाइडलाइन है कि उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे. और कल की क्लास में हम लोग जो दूसरी लैटिन मैगजीम्स हैं उसको रीड आउट करेंगे.